Yes, now students, now we'll talk about the intramural and extramural. है ना? First of all, we'll see what is the meaning of intramural and what is the meaning of extramural. The word intramural is derived from the Latin word intra and muralis. इंट्रा मीन्स व्हाट, है ना? ये तो आपको समझ में आया कि इंट्राम्यूरल वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड है, और व्हेन यू ब्रेक दिस वर्ड देन यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. इंट्राम्यूरल का क्या मतलब है? इंट्रा मीन्स विद इन एंड म्यूरलिस मीन्स वॉल, है ना? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंट्राम्यूरल मीन्स द गेम्स, जो गेम्स वॉल के अंदर होते हैं. अब इसको हम इंडोर गेम और आउटडोर गेम से एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना. इट डजेंट मीन इंडोर गेम एंड आउटडोर गेम. ठीक है. इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल जो है ये इसका जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताऊंगी अभी. पर अभी आप देखिए कि इट मीन्स द एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड विद इन द वॉल्स और विद इन द कैंपस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड इंट्राम्यूरल. और सेम वे एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है? एक्स्ट्राम्यूरल का मतलब होता है एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड एंड म्यूरल्स मीन्स वॉल्स, है ना? तो जो एक्टिविटीज़ आउट ऑफ द वॉल परफॉर्म की जाती हैं दे आर called as extramural activities. Extramural competitions are derived from the Latin word extra and muralis. Extra means outside and muralis means wall. It means that the activities which are performed outside the walls of an institution or a school are called as extramural activities. Now we'll see the origin of intramural and extramural. As you all know, the children have a tendency to play, okay? And they used to take part in such activities within the walls of their school, and this is called as intramural. अब intramural term का जो origin है वो हम देखते हैं कि in the USA the intramural of baseball was organized in 1864. After that, in the beginning of the 20th century, some progressive physical education teachers showed interest in intramurals, and they realized that through intramurals, physical education can be developed more extensively. In 1925, every high school started the mission to establish intramural development in the USA. ठीक है ना? इस तरह से जो है इंट्राम्यूरल का ओरिजिन हुआ. तो इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल टर्म जब एक बार इंट्रोड्यूस हो गया, फिर इसके बारे में हम अब आगे देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द डेफिनेशन ऑफ इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंट्राम्यूरल एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल. The term intramural is derived from the Latin word intra and murals. Intra means within and murals means wall. So we can say that the activities which are performed within the walls or within the campus of an institution are called intramural. Same way, extramural is derived from the Latin words extra and murals. Extra means outside and murals means walls. So we can say that the activities which are performed outside the walls of an institution or schools are known as extramural. Already I told you that this is not the term related to indoor and outdoor games. जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ सपोज हमारे स्कूल के अंदर जैसे इंटर हाउस एक्टिविटी हो रही है या कोई स्कूल का कंपटीशन हो रहा है जो हमारे स्कूल के अंदर हो रहा है, दैट इज़ और स्कूल के बच्चों के बीच हो रहा है ना, दैट इज़ कॉल्ड द इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़. और अगर आप किसी दूसरे स्कूल के साथ आपका कंपटीशन जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं दे कम अंडर द, या इंटर यूनिवर्सिटीज़ जो यूनिवर्सिटी के अंदर, या सपोज़ कोई इंस्टीट्यूशन है, उन इंस्टीट्यूशंस में इंस्टीट्यूशन के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं 2-4 टीम बनाकर, वो सब इंट्राम्यूरल होते हैं. लेकिन उसी इंस्टीट्यूशन या स्कूल या यूनिवर्सिटी के बाहर की कोई टीम उनके साथ जब compete करती है दैट इज़ कॉल्ड द एक्स्ट्राम्यूरल, है ना. तो नाउ आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन intramural and extramural, and do not relate these terms with indoor games and outdoor games. Okay, now we'll see the objectives of intramural. क्या होते हैं intramural activities के objectives? First of all,
to provide opportunity to every student to participate in games and sports. ठीक है, इंट्राम्यूरल में क्या होता है, नेचुरली जब देखो हमारे स्कूल में भी जब हम ये अलग अलग स्कूल्स के साथ कॉम्पिटिशन्स होता है, तब क्या होता है कि हम एक टीम बनाते हैं ना, बहुत सारे बच्चों में से सिलेक्टेड बच्चों को लेके जाते हैं. लेकिन जब इनसाइड द स्कूल होता है, जब आपकी हाउस एक्टिविटीज़ होती हैं, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को चांस मिलता है ना. सो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स. सेकेंड वन इज़ टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़ अमंग स्टूडेंट्स. ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स बनाओगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आप बच्चों को लीडर बनाओगे, कैप्टन बनाओगे, उनको चार्ज दोगे, तो बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं. टू फाइंड आउट टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन. तो जब हमको हमारी टीम बनाना होती है जो कि हमारे स्कूल के जो एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके, तो वो टीम हम कैसे बनाते हैं, वो टीम बनाने के लिए हम पहले इंट्राम्यूरल एक्टिविटी करते हैं, है ना. और इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ में से हम बेस्ट वन सिलेक्ट करके उनको फिर एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़ में भेजते हैं, है ना. एज यू ऑल नो, अपने स्कूल में भी मतलब सभी जगह ऐसा ही होता है. फिर टू डेवलप फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन. जब हम एक दूसरे के साथ गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, टीम आपके अंदर टीम स्पिरिट डेवलप होती है ना, तो आपके अंदर फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन डेवलप होता है. ठीक है. फिर टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्न अ वैरायटी ऑफ गेम्स एंड स्किल्स. जब हम स्कूल में हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं या किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी यूनिवर्सिटी में, तो क्या होता है कि आपके अंदर वैरायटी ऑफ बहुत सारे गेम्स के लिए आपके अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं. अदर देन दिस देयर आर सम मोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्राम्यूरल, लाइक टू प्रोवाइड रिक्रिएशन, टू डेवलप फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, to provide an opportunity to learn a variety of games and skills, then to provide an opportunity to get an experience of organizing competitions, to identify talented sports persons, or to provide an opportunity to develop personality, है ना. ये तो हमने देखे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्राम्यूरल. नाउ विल सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल. एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लाइक टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स. जैसे कि आप स्कूल में देखते हो कि जब हम इंटर हाउस एक्टिविटीज़ होती हैं और जब आप इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हो, तो उसमें डिफरेंस होता है ना. जब आप स्कूल के बाहर खेलने जाते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं, है ना. फिर टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, देन टू ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स, टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप एंड अ फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, देन टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड टेक्निक्स. नेचुरली जब आप अपने स्कूल में कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो या अपने इंस्टीट्यूशन में या अपने यूनिवर्सिटी में, तो आप मीन्स अपने जो अंदर ही आप स्कूल में ही रहते हो ना, लेकिन जब आप बाहर जाके जब पार्टिसिपेट करते हो तो आपको बहुत सारी न्यू थिंग्स जो हैं वो लर्न करने को मिलती हैं. यू विल लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स व्हेन यू गो आउट ऑफ योर स्कूल और इंस्टीट्यूशन और university. What are the significance of intramural and extramural? First one is it helps in providing the ways and means for the development of self-esteem, citizenship, responsibility, sportsmanship, and skills in cooperative behavior. Second one, it helps in providing to take part in activities that encourages active participation, enjoyment and fun without external pressure or reward. Next, it helps in providing opportunities for students and expose them to a wide variety of sports skills and activities so that they may refine interest and make choices to suit their personal abilities and needs. अभी हमने जो बात की वो कॉमन सिग्निफिकेंसेस थे जो कि इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल के थे. अब थोड़ा सा हम सेपरेटली देख लेते हैं कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्राम्यूरल्स एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ
एक्स्ट्राम्यूरल्स। पहले हम बात करेंगे इंट्राम्यूरल की। द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्राम्यूरल्स फॉर students. One is intramurals are significant for physical, mental, emotional, and social development of students. Next one, these programs also lay stress on moral and ethical values of students. Third one, intramurals are necessary for the development of health of children. Number 4, these programs are also important to tone down the fighting instinct of children. These programs refresh the children and make them agile. Intramurals provide maximum recreation to the students. They provide ample opportunities to the students to participate in games and sports. They are also essential for developing leadership qualities among the students. Now we'll see the significance of extramural competitions. It provides opportunities to schools to show their sports capabilities. है ना, हर स्कूल अपनी स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी शो कर सकता है. It enhances the standard of sports performance. It provides appropriate knowledge of sports techniques. Next one is plan and implement the programs of physical education more effectively. है ना, जब हम इन हाउस और आउट ऑफ द हाउस कोई वर्क करते हैं तो उसमें डिफरेंस होता है. इम्प्रूव द अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स. है ना, जब आप एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, आपका प्रेजेंटेशन, आपका प्रिपरेशन दोनों अलग होते हैं. है ना. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल. इसको आप किस तरह से पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल इनके आप नोट्स जब बनाएंगे तो सबसे पहले आप मीनिंग ऑफ इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल लिखेंगे, उसकी डेफिनेशंस लिखेंगे. Then you will write down the significance of intramural and extramural, and then you will note down the objectives of intramurals and extramural. Okay. Now the next one is specific sports programs under the sports day, health run, run for specific cause, and run for unity. है ना. अब ये क्या है कि जैसे हमने देखा कि अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे तो उसमें जो भी हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम फिज़िकल फिटनेस, है ना, और कॉम्पिटिशन्स, इन सब के लिए हमने डिस्कस किया. लेकिन कुछ जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वो एक अलग उद्देश्य के लिए भी होती हैं. जैसे कई बार हम कुछ चैरिटी करते हैं, है ना, और कई बार कुछ चीज़ों के लिए रैली वगैरह भी निकालते हैं हम. तो अलग अलग हर चीज़ का एक व्यू होता है, वो मैं आपको बताती हूँ. स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स आर सच प्रोग्राम्स ऑफ स्पोर्ट्स विच आर नॉट यूजुअली रिलेटेड टू कॉम्पिटिशन्स. These sports programs have various objectives such as creating awareness among people regarding unity, health and diseases like AIDS, swine flu, etc. and raising funds for charitable institutions or organizations. Such programs may be organized for promoting and maintaining the cause of health among people. These sports programs are described here. फर्स्ट वन इज़ स्पोर्ट्स डे. तो जैसे हम स्पोर्ट्स डे मनाते हैं तो आपको मालूम है कि स्पोर्ट्स डे किस तरह से मनाया जाता है ना. तो अब वो स्पोर्ट्स डे का भी कोई मोटो होता है. कई बार हम जो है कुछ चैरिटी के लिए करते हैं, कई बार चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए करते हैं, है ना. अलग अलग रीज़न से हम स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं. और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए भी हम स्पोर्ट्स डे मनाते हैं. इसका क्या प्रोसीजर होता है? A specific day should be fixed for organizing sports day. जैसे स्कूल में भी आपने कई बार देखा होगा कि जब हम स्पोर्ट्स डे मनाते हैं तो एक हमारा डे फिक्स होता है कि इस दिन हमारा स्पोर्ट्स डे हम सेलिब्रेट करेंगे. ठीक है. फिर नेक्स्ट वन इज़ हेल्थ रन्स. अब हेल्थ रन में क्या होता है
कि हेल्थ रन्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और सोशल organizations. Usually their purpose is to the standard of health in a country along with raising funds for charity. ये लोग जो हेल्थ रन करते हैं ना, ये क्यों करते हैं, ये कुछ चैरिटी कलेक्ट करते हैं. जैसे सपोज़ कैंसर पेशेंट्स हैं, एड्स पेशेंट्स हैं, है ना, या कई बार कुछ नेचुरल डिज़ास्टर हो जाते हैं ना, कहीं फ्लड्स आ जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, तो उसके लिए भी कई बार ये लोग कुछ चैरिटी करते हैं. तो उस तरह की चीज़ों के लिए ये हेल्थ रन जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं. फिर उससे जो चैरिटी कलेक्ट होती है वो लोग रिलीफ फंड में सेंड करते हैं. ठीक है. Sorry. Avoid tension. There are some points under this health run. Avoid tension. Make sure that your arms, shoulder, neck and fingers are relaxed. Hands should be unclenched. Your breathing should be rhythmic and deep. Exhale with controlled force. When you pick up the pace, don't let your breathing get shallow. Don't bend your body from the hip level. Run softly and your strides should be normal. Your arms should swing equally. Always consume adequate amount of fluid before and after the run, especially in heat. Consult doctor as a precautionary measure if you are over 60 years old and do not exercise regularly. ठीक है ना. अब इसके बाद नेक्स्ट आता है रन फॉर रन. रन फॉर रन क्या है? रन फॉर रन इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड विद एन ऑब्जेक्टिव टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ रिमेनिंग हेल्दी एंड फिट अमंग द मासेस. कि कई बार हम ये मैसेज भी देते हैं कि भाई आप फिज़िकली फ़िट रहना चाहते हैं तो जॉगिंग करें, रनिंग करें, स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व रखें, है ना. इस तरह के मैसेजेस देने के लिए भी हम कई बार इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं. इट इज़ ऑल्सो ऑर्गेनाइज इन द सेम वे एज द हेल्थ runs. Okay. Run for Run is also organized to raise funds for a charity. The sponsors only deduct the organizational expenditure, and Run for Run can include novelties such as wearing costumes and defining age categories for children, teenagers and adults. ठीक है. Then ये स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं आपके, जैसे हेल्थ रन है, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज है, रन फॉर अवेयरनेस है, रन फॉर यूनिटी है, रन फॉर रन. ठीक है. फिर आपका आता है रन फॉर यूनिटी. सच अ रन इज ऑर्गेनाइज्ड विद अ स्पेसिफिक पर्पस. इट इज़ फॉर यूनिटी एंड पीस अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. ठीक है. और इट्स पर्पस मे बी नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन एंड ब्रदरहुड. इस तरह की, जैसे आपने देखा होगा ना कई बार कि फिल्म स्टार्स और मैराथन रनर्स जो होते हैं दूसरी कंट्रीज़ के, है ना, वो इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं. तो इससे हम क्या शो कर पाते हैं? यूनिटी और ब्रदरहुड. ठीक है. तो इसके लिए रन फॉर यूनिटी होता है. और एक इसमें होता है लास्ट, दैट इज़ रन फॉर अ स्पेसिफिक कॉज, है ना. रन फॉर अ स्पेसिफिक कॉज इज द रन विच इज़ रिलेटेड टू गुड एंड नोबल cause. It can be organized for various categories of participants and the distance of the run may vary for different categories of participants. ये जो होता है ना, इसमें अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग डिस्टेंस डिसाइड करते हैं हम. जैसे सपोज़ बच्चे हैं या एडल्ट्स हैं या टीनेजर्स हैं, तो वो अलग अलग कैटेगरीज़ बना के उनके लिए अलग अलग हम डिस्टेंस प्लान करते हैं. ठीक है. और ये होता है कुछ स्पेसिफिक कॉजेज़ के लिए. Okay. Now here our chapter number 1 is completed. You go through all the videos and if you have any query you can ask. Okay. Thank you.